فلسطین مسلمانوں کے لیے اہم کیوں ہے، آئیے جانتے ہیں فیصل شیخ کی اس مختصر ڈاکومنٹری رپورٹ میں۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں کے مسلمانوں پر روزانہ کی بنیاد پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ ایک خوبصورت ترین ملک تھا، لیکن آج یہ راکھ کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے۔ مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں؟ بیت المقدس پر کس کا قبضہ ہے؟ لڑائیوں سے پہلے یہ ملک اور یہاں کے لوگ کیسے تھے؟ یہاں کے لوگوں کا رہن سہن اور کھانے کیسے تھے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ فلسطین، جسے آفیشلی طور پر اسٹیٹ آف فلسطین کہا جاتا ہے، یہ مغربی ایشیا کے جنوبی لیونٹ کا علاقہ ہے، جسے اقوام متحدہ کے 193 ملکوں میں سے 145 ملکوں نے تسلیم کیا تھا۔ اس ملک کی سرحدیں اسرائیل، اردن اور مصر سے ملتی ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ 6020 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کل رقبے کے 3.5% حصے پر پانی موجود ہے، جو خوبصورت دریاؤں اور ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے۔ اگر بات کریں یہاں کی کل آبادی کی، تو 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں 54,83,450 لوگ رہائش پذیر ہیں۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 163ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 731 لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، فلسطین ایک ہنستا کھیلتا ملک تھا جسے اسرائیل کی نظر لگ گئی۔ آج فلسطین کے 80% رقبے پر اسرائیل ناجائز طور پر قابض ہے۔ موجودہ وقت میں فلسطین کم اور اسرائیل زیادہ لگتا ہے۔ ناظرین، فلسطین کا کیپٹل یروشلم ہے، جو کہ اسرائیل کا بھی ہے۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحیرہ مردار کے درمیان یہودی پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس شہر کو 3 بڑے ابراہیمی مذہب یعنی نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 عیسائیت اور اسلام سب کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ریاست فلسطین اور ریاست اسرائیل دونوں ہی اس شہر کو دارالحکومت مانتے ہیں۔ زبردستی ناجائز طریقے سے اس پر قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ یہ شہر کافی حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہے، مگر اسرائیل والی سائیڈ مکمل سرکاری دفاتر کے زیر انتظام ہے۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی موجود ہے، جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد بیت المقدس سب سے عظیم ہے۔ اس احاطے میں مسجد اقصی بھی موجود ہے، جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرے نمبر پر بنائی جانے والی مسلمانوں کی مسجد ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 125.156 مربع کلومیٹر ہے، اور 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق کل آبادی 9,81,711 لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 7800 لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے بحیرہ روم کا ساحل لگتا ہے۔ حماس کے حملوں سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانوں پر لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ اس شہر کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے، اور یہاں کی کل آبادی 5,90,481 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ سے پہلے بالکل ایک عیاش عرب ملک تھا۔ یہاں بھی دنیا کا ہر اچھا اور برا کام ہوتا تھا۔ فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ملکوں میں شفٹ ہو چکی ہے۔ جنگوں سے پہلے یہاں بھی رات کے وقت ڈانس کلبز، پرائیویٹ ڈانس پارٹیز، سوئمنگ پول پارٹیز اور بیچ کے کنارے انتہا کی فحاشی ہوتی تھی۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ
रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। इस शहर का नाम हेब्रोन है, जहां इब्राहीमी मस्जिद मौजूद है, जो आधी मुसलमानों के पास है और आधी यहूदियों के पास। ये इतनी बड़ी है, इस शहर की कुल आबादी 2,01,063 लोगों पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, अब हम दुनिया के 5वें सबसे कदीम तरीन शहर नेबलूस की सैर करने जा रहे हैं, जिसे नेबलस भी कहा जाता है। ये शहर कदीम सकाफत रखता है। यहाँ के घर और बाजार देखने से ताल्लुक रखते हैं। इस शहर का कुल रकबा 28.6 मुरब्बा किलोमीटर है और कुल आबादी 1,75,000 लोगों पर मुश्तमिल है। कई सौ साल कबल बनाए गए बाजार और मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। मोहतरम नाजरीन, बैतुल मुक़द्दस के करीब एक ऐसा शहर जो तारीख से माला माल है। इस शहर का नाम बैतुल लहम है। इस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और ईसाइयों का पहला गिरजा घर भी इसी शहर में मौजूद है। इस शहर में हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वो मस्जिद भी मौजूद है जहां उन्होंने नमाज अदा की थी। इस शहर में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई, हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत भी इसी शहर में मिली थी। ये शहर कदीम तारीख से भरा पड़ा है। इस शहर को 1400 BC में दरियाफ्त किया गया। इस शहर का कुल रकबा 10.611 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 25,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर को हाउस ऑफ मीट और हाउस ऑफ ब्रेड भी कहा जाता है। नाजरीन, इस सरजमीन पर बहुत सी हुकूमतें आईं और चली गईं, जिनमें यूनानी, फारसी, रूमी, तुर्की और सलीबी हुकूमतें सरे फहरिस्त हैं। इस्लाम ने इस खित्ते को 638 हिजरी में हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में फतह कर लिया था। दौरान मुसलमान हुकूमत के 1095 में सलीबी काबिज हुए और जंग जीत गए। इस जंग में अच्छी खासी कत्लो गारत हुई। ये सलीबी जंगी सिलसिला 1291 तक चलता रहा। फिर सल्तनत उस्मानिया के घोड़े उठे, जिन्होंने रास्ते में आने वाली हर गैर मुस्लिम कुव्वत को निस्तो नामूद कर दिया। 1516 में उस्मानियों ने इस खित्ते को फतह कर लिया। पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के दौरान अंग्रेजों ने इस खित्ते को फतह करके अपनी हुकूमत को कायम कर लिया। दौरान ब्रिटिश हुकूमत के इसराइली यहूदी फ़लस्तीन में पूरे ज़ोरों शोर से महंगी ज़मीन खरीद कर दाखिल हुए। यहूदी लोग खासे अमीर थे। दुगनी रकम अदा करके इन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन को खरीदा और आबाद होना शुरू हो गए। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान जब हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करना शुरू किया तो बेशुमार यहूदी फ़लस्तीन की तरफ भागे। फ़लस्तीन के लोगों ने रहम दिली करते हुए इनको पनाह दी, मगर ये उनके घरों पर ही वक्त के साथ साथ काबिज होते चले गए। आज भी लड़ाई की असल वजह बैतुल मुक़द्दस है। अरबों और यहूदियों की लड़ाइयाँ काफ़ी अरसा तक चलती रहीं। 1947 में ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा एक अजलास के तहत रखा गया, जिसमें फ़लस्तीन को तकसीम कर दिया गया। 15 मई 1948 को फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसराइल बाकायदा तौर पर वजूद में आ गया। इस मुआहदे के बाद भी अरबों ने बैतुल मुक़द्दस की कई जंगें लड़ी, मगर इसराइल हमेशा जीत हासिल करता गया। ये जंग आज दिन तक जारी सारी है। फ़लस्तीन की कौमी ज़ुबान अरबी है। फ़लस्तीन में 3 करेंसियाँ मौजूद हैं। नंबर 1 इजिप्शियन पाउंड, नंबर 2 इसराइली न्यू शेकल और नंबर 3 जॉर्डन दिनार। अगर हम गजा को देखें तो बिल्कुल समुंदर के सामने एक लंबी पट्टी की मानद ये शहर है, जिसकी बैक साइड पर एक लंबी दीवार और फ्रंट साइड पर समुंदर है। ये दीवार पूरे गजा को कवर करती है। दरअसल ये दीवार इसराइल और गजा के दरमियान एक बॉर्डर है। इस दीवार को 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी पर्पस और कब्जा प्लानिंग के तहत तामीर करवाया था। आज अगर किसी गजा के शहरी को बैतुल मुक़द्दस की जानिब जाना हो
तो एक लंबे और सुनसान इलाके से गुजर कर जाना पड़ता है। गजा की दीवार के दूसरे जानिब इसराइल है, जहां हर चीज की फरावानी है, लेकिन गजा में किल्लत पानी इंतहा की हद तक है और दौरान जंग खाने पीने की तमाम अशिया की भी किल्लत है। बहुत से मुसलमान बच्चे और लोग भूख की शिद्दत की वजह से इस दुनिया फानी को छोड़कर चले गए, लेकिन वहीं इसराइल की जानिब हर चीज की फरावानी है। मौजूदा वक्त में पूरे फलस्तीन में क़यामत का मंजर है। ज्यादातर घर टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। इसराइली फौजियों का कब्जा है, हत्ता कि गजा की समुद्री साहली पट्टी और बंदरगाह पर भी इसराइलियों का कब्जा है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करते हैं कि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर अपना रहम फरमाए और तमाम मुसलमान मुमालिक मुत्तहिद होकर अपने इस मुसलमान मुल्क भाई की मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी फ़लस्तीन के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।